Hi, my dear beautiful souls. Namaste. My name is Bhumika, and this is a twin flame energy check-in. And आपको अगर पता है कि आप twin flame हैं, so ये रीडिंग आपके लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एंजल टैरोट गाइड से अपने एंजल्स को गाइडेंस के लिए बुलाना चाहती हूँ कि हमारे कौन से एंजल्स हैं आज जो हमारे साथ हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें अपने आगे के स्टेप्स को पाने के लिए मदद करने के लिए कौन से हमारे ब्यूटीफुल एंजल्स हैं जो आज हमारे साथ प्रेजेंट रहेंगे हमारी ट्विन फ्लेम रीडिंग एंजल्स टू बी हियर विद अस in this twin flame reading. Both these angels are for you and for your twin flame. So we'll have a current energy check-in, the all over energy checking. जो भी आप लोग दोनों कौन सी एनर्जी में हो, आप लोग दोनों कौन सी एनर्जी में हो, what is the overall energy check-in for this set of twin flames? Thank you for these beautiful messages. Thank you, my angels. Thank you. Okay, so many cards. I need only one card, please, angels. Thank you so much. Be little precise. Be little precise to know. Be little precise. What is the overall energy for this twin flame, for this set of twin flames? Okay, the strength card. And the bottom of the deck, the chariot. So the overall energy for you is the strength, and you need to move. Here I get is you have to move for the new beginnings in your life. Okay. And you need the strength to remove yourself from this feeling of guilty and if you are in this energy of being proud, proud of where you are right now and being over proud or being over guilty or being over emotional, so this state is there. uh, this is something with what I'm getting is your new energy, your overall energy. सो वील कलेक्ट, हम टैरो से कलेक्ट कर लेंगे आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं. प्लीज माय डियर एंजल्स, प्लीज सेट योर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर. प्लीज सेट योर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर. प्लीज सेट योर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर. उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? प्लीज सेट योर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर. The current situation, the current energy check-in for your partner. The current energy check-in for your partner. Okay, it's done. Current energy check-in for you. Current energy check-in for you. 3 cards. Please draw 3 cards, angels. Please be here and draw 3 cards, angels. Thank you. Please draw 3 cards for the current energy checking of the viewer. काफ़ी वेटिंग की एनर्जी है और काफ़ी लो वाइब्स में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आप. आई थिंक यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन. आप जैसी अपनी वाइब्रेशन रेज करोगे आपके जो ट्विन पार्टनर हैं उनकी भी एनर्जी रेज हो जाएगी. ओके angels, please set your intentions, my dear viewers. Set your intentions. What do you need to know? What is your current energy check-in? What is your current energy check-in? Please, angels, provide me messages. Please provide me messages. Please, angels. Okay, fulfilled. 10 of Cups. This is the recent past energy.
This is the current energy of celebration, and the future energy of Wheel of Fortune. And the bottom of the deck is Two of Cups. You are completely in love with your twin, and you are moving towards them. If your partner were in if your partner was अगर आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, कोई ऐसी करंट सिचुएशन थी जहाँ पे वो अपने जो कर्मास है, कर्मा बाउंड थे, वहाँ पे वो अब अपना कर्मा बाउंड रिलीज़ करने वाले हैं, और रिलीज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ रीसेंट पास्ट एनर्जीज ऐसी आ रही है यहाँ पे। ऑल द साइंस आर प्रेजेंट, सो उनके जितने भी साइंस हैं, उनके जोडियाक चार्ट में, उनके जो चार्ट में जितने भी जोडियाक साइंस हैं, उन सब पे एक यूनिवर्सल अटैक हुआ है, एक यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट, एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग उन्हें 3D वर्ल्ड में अनुभव कराई गई है। एंड उनको बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी में, या सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ उनके सामने कुछ प्रेजेंट हुआ है उनके कार्मिक सिचुएशन में, या 3D सिचुएशन में। नॉट कार्मिक एज इन लाइक, जो कार्मिक एज इन लाइक आपको जो कर्मास करने होते हैं, इट कैन बी गुड, बैड, न्यूट्रल, ऑल काइंड ऑफ कर्मास आर देयर। सो जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। वहाँ पे बहुत कुछ उन्हें रियलाइजेशंस हुए हैं रीसेंट पास्ट में। सो आपके पर्सन को यूनिवर्स ने एक न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है, और वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, एक न्यू रेल्म को एंटर करना चाहते हैं, या वो देख रहे हैं कि उनके सामने ये एनर्जी अवेलेबल है, ये 2 ऑफ कप्स अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये रेल्म में अभी एंटर करने से वो अभी अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा गार्ड कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बच रहे हैं इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो यहाँ पे 9 काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है आपके पर्सन को 999 की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हो। तो डेफिनेटली उनके लाइफ में एक साइकिल है, एक एंडिंग है जो अप्रोच कर रही है। तो अगर वो अपने आप को किसी रियलाइजेशन से या फिर एक्नॉलेजमेंट से गार्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच सिंपली मीन्स दैट नाउ दे आर इवन प्रोटेक्टिंग देयर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो, अपने आप को हार्म होने से बचा रहे हैं, नेगेटिव बातों से, नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी ओवरऑल एनर्जी, एज इन लाइक आप जो कर रहे हो, आप प्रेजेंट स्टेट में जैसे कि 10 ऑफ कप्स के हो, फुलफिलमेंट की एनर्जी में हो, आप अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को एडमायर कर रहे हो, ग्रेटफुल की ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हो दैट यू हैव मेट योर पार्टनर। नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 9 और यहाँ पे नंबर 10, दैट मीन्स आप, एंड 10 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, विच इज़ अगेन अ 10 नंबर कार्ड। सो आपकी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स एक जो न्यू बिगनिंग है इनकी लाइफ में जो है वो आप ही हो, आप ही हो जो न्यू बिगनिंग हो इनकी लाइफ में। वो कंप्लीशन को फील करते हैं एट अ लेवल कि उन्होंने ऑलमोस्ट, दे आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग देयर कार्मिक डेप्थ इन दिस प्रेजेंट लाइफ। दे आर सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग प्रोसेस में वो कुछ एकदम एज पे हैं, अपने न्यू पोर्टल को एंटर करने के जोन में है। सो अभी जो पोर्टल आ रहा है 4-4, हो सकता है उनकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो जो आपका, उन्हें स्ट्रेंथ मिले बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करने में, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपने अभी तक जितना उन्हें सपोर्ट किया है उसे एक्नॉलेज करने में, उसे रियलाइज़ करने में उन्हें एंजल्स गाइड कर रही हैं। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो एंजल है वो न्यू बिगनिंग के लिए आई है। तो यहाँ पे अगर वो अपने आप
आप को न्यू बिगनिंग करने से रोक रहे हैं, अगर वो आपके तरफ आने से, अपने आप को किसी चीज़ों से, अपने पास्ट ट्रॉमास के वजह से या फिर अपने प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स के वजह से अगर वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे अभी तक, तो नाउ द न्यू बिगनिंग एंजल इज गाइडिंग देम एंड ब्लेसिंग देम। उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि वो अपनी लाइफ में एक न्यू फेज को, एक न्यू रेल्म को, एक न्यू पोर्टल की तरफ एंटर कर सके। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज नंबर 7 कार्ड, एंड दिस सिंपली मीन्स दैट अब उनका जो मूवमेंट है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ उनका जो बढ़ाव है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। इवन आपका भी इंक्रीज होने वाला है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है 3 ऑफ कप्स, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मूड में हो, आपको बहुत सारे ऐसे पावर्स मिल रहे हैं बिकॉज आपने अपने 10 ऑफ कप्स को अचीव किया है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन द फ्यूचर है, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है, जो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है एंड कंप्लीटली न्यू रेल्म में एंटर करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो और आप अपने यूनिवर्स को बोल रहे हो आई एम रेडी। एंड आपने अपने सारे पास्ट कर्मास, पास्ट ट्रॉमास रिलीज कर दिए हैं, बहुत सारा इनर वर्क किया है आपने शिव शक्ति को पूरी तरीके से अपना समर्पण दिया है और उस चीज़ की खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर पा रहे हो। और आपको वो इस तरीके से जब देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, तो वो आपकी तरफ, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आपके अंदर अगर कहीं पर ये 3 ऑफ कप की एनर्जी मुझे कोई ऑब्स्टिकल भी दिखाता है, एज एन लाइक कोई एक थर्ड चीज़ है जो अभी भी इंटरप्ट कर रही है, आपका जो ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज जब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्या कर रहा है, राइट? यहाँ पे भी कुछ एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आप कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आने से कोई डिस्ट्रैक्शन है जो अभी भी प्रेजेंट है आपकी सराउंडिंग में, ठीक है? तो वो जो डिस्ट्रैक्शन क्या है और यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग है वो हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं विद दीज कार्ड्स। सो इस कार्ड्स में कोई रिवर्सल नहीं है, मैं कोई रिवर्सल्स नहीं काउंट करती हूँ इस कार्ड में, इस डेक में। सो यहाँ पे मुझे आपके जो ऑब्स्टिकल है उसे फाइंड आउट करने में फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प देनी है आपको। बिकॉज अगर आप अपने ऑब्स्टिकल को क्लैरिफाई करोगे तो ये जो स्ट्रेंथ आपको रिसीव होती है, या जो आप ये स्ट्रेंथ, ये 10 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है, उसमें जो स्ट्रेंथ आप जब क्रिएट करते हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने देखा होगा आपके जो भी रिलेशंस होते हैं वो आपको मिरर करते हैं, आपको मिरर नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ये भी आपका जो रिलेशन है उनको अपलिफ्ट करने में, उनको न्यू एनर्जी को क्या कहते हैं, फुल्ली एक्सेप्ट करने में, हमें कई बार एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स या हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते। हम उन्हें क्यों एक्नॉलेज नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें बिलीव नहीं करते। हमारा बिलीव सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते, हम दूसरे लोगों पे बिलीव नहीं करते, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये जर्नी आपको मिली है इसलिए कि आप ये अपने सारे ट्रस्ट इश्यूज़, अपने ट्रॉमास, अपने चाइल्डहुड एनर्जीज़ को रिलीज़ करें, हील करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी ऑरा को, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस की तरफ लेके जाएं, है ना? सो दैट आपके अच्छे रिश्ते, चाहे वो 2 ऑफ कप्स पे सिर्फ मैं लवर्स की एनर्जी नहीं लेना चाहूँगी, बट यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके गुरु के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ ऑफिस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी बात भी हो सकती है, आपके बिजनेस लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी भी बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अफेक्ट करता है वो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है, आप दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो, मुझे यहाँ दिखता है आप एक दूसरे की पावर आप ही हो। यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है, द 3 ऑफ कप्स, वाई 3 ऑफ कप्स इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई माय एंजल्स फॉर दिस सेट ऑफ ट्विन फ्लेम। ओके,
ओके, मुझे यहाँ दिखता है कि दीज आर द सेट ऑफ एंजल्स, दीज आर द सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस हु आर डिवाइन आर हाफ वे डन। यहाँ पे टू की एनर्जी है एंड दिस इज सिक्स ऑफ swords। सो सिक्स ऑफ swords आर मेक योर चॉइसेस। आप अपनी चॉइसेस क्लियर कीजिए। यहाँ पे टू ऑफ कप्स अगेन है, दैट कम्प्लीटली मीन्स कि आप उस एनर्जी में हो, आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप अपना कप एंटायरली कंप्लीटली अपने पार्टनर को देना चाहते हो एंड ये एक्नॉलेजमेंट आप को ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे टू टू नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखती होगी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। सो ये मुझे और दिखता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। दैट मीन्स सिक्स सिक्स की एनर्जी। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, दैट मीन्स 3 6 9। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी बार बार आपके लाइफ में दिखती है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दिखती है, बट वो जो एनर्जी है वो आपकी नहीं है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपको यहाँ पे दिखती है। सिक्स की एनर्जी, जो भी सिक्स की फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके पार्टनर की फ्रीक्वेंसी है। और आपके पार्टनर की जो फ्रीक्वेंसी है नंबर सिक्स, उससे मुझे ये दिखता है कि जो आपके ट्विन पार्टनर है उनको अपनी फेमिनिटी, अपनी बहुत ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड को छोड़ के अपने फेमिनिटी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए। थोड़ा हार्ट से सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस को अलाइनमेंट में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यहाँ पे द फूल की एनर्जी मुझे दिखती है एज एन लाइक, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे प्लानिंग की थोड़ी कमी है आपके लाइफ में। आप अपने आप को द फूल की एनर्जी में फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बस चलते जाना चाहता हूँ। जो आप पुराने ओल्ड साइकिल्स हैं, अगर आप अपने ओल्ड साइकिल्स के पैटर्न्स को सोच के अगर आप अपने न्यू रेल्म में एंटर करेंगे तो आप अगेन अपनी पुरानी ओल्ड डिस्ट्रक्टिव साइकिल में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपको वो ओल्ड पैटर्न्स एंड ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपके चेंज करने होंगे एंड आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होगा। सो यहाँ पे मुझे 9 ऑफ swords को मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। Why 9 of swords is here for your partner's energy? ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ द वैंस का कार्ड है। डेफिनेटली इन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉटर ऑफ वैंस मीन्स अब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपने अपने रियल लाइफ में यहाँ पे 20 नंबर का कार्ड है द जजमेंट एंड जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको अपने हायर वाइब्रेशंस में आना है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, दैट मीन्स आपको अपने पावर्स में आना है एंड अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है। जो भी लोग आपको हार्म करते हैं या फिर आपको ये डिस्ट्रक्टिव और लोअर एनर्जी में पुल करते हैं, उन्हें आपको अपने लाइफ से रिमूव करना है। रिमूव करना एज इन आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज जो स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए बनाई गई है। सो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस हैं, आप उसको प्लीज़ सर्च कीजिए, उसे फाइंड आउट कीजिए वो क्या है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें गाइडेंस करने के लिए मेरी ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसका यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशंस में इसका यूज़ करना है। तो वो मेडिटेशन को यूज़ करने से पहले आप उसके बारे में पूरा नॉलेज लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए और फिर उसके बाद उन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई माय डियर एंजल्स, आपके पार्टनर में एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हो रहा है, यस, वाओ, द हाई प्रीस्टेस। देखिए, आई टोल्ड यू, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है या अपने फेमिनाइन को आपको वो रिस्पेक्ट देनी है जो वो आपसे
आस्क कर रही है, यहाँ पे द सन का कार्ड है। दैट मीन्स आपको अपने मदरली नेचर को, आपके जैसे देर आर सम पार्टनर्स जो बहुत ही अच्छे पेरेंट होते हैं। एंड मुझे ये ऊर्जा दिखती है आपके जो ट्विन पर्सन है। ये हो सकता है, आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के भी हो सकते हैं या कम्प्लीटली ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो मैसेजेस मुझे मिलते हैं। कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो बहुत ही फेमिनिन हैं और वो ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से आप जब उनसे मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उनका जो आप जैसे ही उनके साथ मिलते हो आपको ऐसा लगता है कि यू आर एट योर होम, यू आर एट योर सेफेस्ट प्लेस। आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो कितना सेफ फील कर रहा है अपने मॉम के पास। तो यू फील लाइक इट्स अ होम, यू फील लाइक दैट एनर्जी का जो पुल है वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और उनकी जो बैलेंस करने की जो शक्ति है, एक्चुअली ये जो बैलेंस करने की शक्ति है वो हर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो भी डिवाइन है या डिवाइन जर्नी में है उनके पास ऑलरेडी पहले से ही होती है, बचपन से ही होती है। बस आपको वो एक्नॉलेज करने की देरी होती है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि नए पोर्टल में हो सकता है जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्नॉलेज करेंगे, आपके पर्सन जब अवेकनिंग प्रोसेस में जाएंगे, जब जजमेंट उनको सर्व होगा, जब जस्टिस उनको सर्व होगा, तब उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्या है? Please clarify my beautiful angels, why this 9 of wands is here. Okay, 9 of wands is clarified by 7 of wands, inner acknowledgement, self realization, self reflection, and father of cups. फादर ऑफ कप्स, देखा मैंने कहा जो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो फादर होते हैं और इमोशनल होते हैं। हमारे घर में ऐसे फादर होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फैमिली के लिए कंप्लीटली फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए उनकी फैमिली फर्स्ट आती है, उनके वाइफ, उनके बच्चे, वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को इंक्रीज करना चाहते हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा में जाती है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने जो भी अपने पास्ट में अपने लिए मैनिफेस्ट किया था वो मुझे कंप्लीट होते हुए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, आपने कोई सेलिब्रेशन, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई आइडेंटिटी आपने अगर अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए मांगी थी, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के एंजल हमारे यहाँ पे डिवाइन ग्रेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे कंप्लीशंस हैं। नंबर 666 की सिंक्रोनिसिटी, नंबर 1010, 99, 00 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एस की भी एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। तो और बाकी मैं कंप्लीटली देखूँ तो यहाँ पे सारे जोडियाक साइन मौजूद हैं। तो आप चाहे किसी भी जोडियाक साइन के हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपसे रेजोनेट करती है, तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। यहाँ पे मैं एक ऑल ओवर गाइडेंस लेना चाहूँगी मेरे एंजल्स से, एक लास्ट मैसेज जस्ट फॉर यू ऑल कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें और उनके पार्टनर के लिए कोई एक ओवरऑल एनर्जी, कोई एक मैसेज आप हमारे एंजल्स की तरफ से प्लीज़। क्वीन ऑफ मून ओरेकल डेक, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, व्हाट डू दे नीड टू नो, व्हाट मैसेज आर फ्रॉम योर साइड। Queen of Moon Oracle deck, what are the messages from your side? Give me one message. What do they need to know? How can they work ahead in their twin flame journey? One step ahead. How can they move one step ahead in their twin flame journey? Wow. Bottom of the deck is boundaries, and आपके लिए कार्ड आया है नंबर 9, assessing first quarter moon.
फर्स्ट क्वार्टर मून की जो एनर्जी है मुझे ये दर्शाती है कि आपने अभी ऑलरेडी अपना हाफ वे कर लिया है, ठीक है। एंड जब आपने अपना हाफ वे कर लिया है तो ऐसा होता है ना कि हमें एक बार अपने प्लान्स को, अपने जो भी एक्नॉलेजमेंट्स थी, जो अवेकनिंग थी, जो हमने अपने ट्रॉमास थे या जो हमने जो भी पास्ट में अभी तक जो भी सफ़र किया है उस पे एक बार नज़र मार लेना बहुत अच्छा होता है। तो अभी क्या होता है, आप असेस कर रहे हो, एक बार अपने प्लान्स को असेस करो, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो अपने जर्नी में। बहुत सारे इस जर्नी में बहुत सारे आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की तरफ हो, मूवमेंट की तरफ हो। यहाँ पे आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिवली अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो। आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से, अपने एंजल से। एंड नंबर 9 का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि जैसे ही आप ये सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, सेल्फ असेसिंग करेंगे अपने स्किल्स की, अपने हुनर की, आपके क्रिएटिविटी की, आपके टैलेंट की, एक बार फिर से देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे है, तो न्यू आइडियाज़, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर्स टू सेलिब्रेट योर लाइफ आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो खड़ी हों, बहुत सारे न्यू दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। तो एक बार रीअसेस करने के लिए अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे नंबर 12 का कार्ड है विच टेल्स मी विच इज़ बाउंड्रीज़। और ये बाउंड्रीज़ मुझे ये दिखाता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वैक्सीन गिलिबस मून नंबर 3। एंड यहाँ पे नंबर 3 का आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। सो आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप अपने डेली इनर वर्क पे क्या क्या प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, और योगा प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं आप, ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा प्रोटेक्शंस, अपनी हीलिंग, अपने आप को हील करने के लिए कुछ टाइम बाउंड करना चाहते हैं, जैसे 1-2 घंटे कुछ आप अपनी हीलिंग की तरफ दें, सोने से पहले या फिर उठने के बाद। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें आप फुलफिलमेंट के लिए और क्या बेटर बाउंड्री सेट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करनी है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है, एंड आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो प्रोटेक्ट करना है। तो आपके एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस, आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। आप जैसे ही कहीं से पास ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आई थिंक एक्नॉलेजमेंट और बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलता है, जिससे भी आपके पार्टनर को अफेक्ट होता है। और अगर आपके पार्टनर को, जो अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आपको वो चीज़ें, आपके पार्टनर की जो ऊर्जा है उससे आपको अगर कोई ट्रॉमास मिल रहे हैं या कोई ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक आपको उसे शेड आउट करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक स्नेक अपने स्किन को कैसे रिमूव करता है, और एक जो ओल्ड स्किन है उस ओल्ड पैटर्न को रिमूव करता है, और एक न्यू स्किन, ऑलरेडी शाइनिंग स्किन, ब्राइट स्किन, फ्रेश स्किन उसके पास ऑलरेडी देन आती है, उसके पास रहती है। तो स्किन शेडिंग करना, शैडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शैडो वर्क मेडिटेशन कीजिए, अपने एटलीस्ट 5 मिनट्स अगर आप अपने यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे मुझे फायर की एनर्जी जो मुझे अपने थ्रोट चक्रा के लिए भी मुझे दिखती है। तो अगर आपके कम्युनिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्लीज़ वर्क कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि जो आप फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो बैड फीलिंग हो या फिर गुड फीलिंग हो, उस फीलिंग को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, फादर ऑफ कप्स की ऊर्जा में आएंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जगह उसे सोल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे, तो आप अपने हर सिचुएशन को स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको आपके एंजल्स के थ्रू, एंड आप स्ट्रांगली उसको फेस कर पाएंगे। आपको उससे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ग्रीफ की सिचुएशन, ये ट्रॉमा की सिचुएशन आपके अंदर नहीं आएगी।
तो all the best for you people, and these were the beautiful messages for your current energy check-in. So please, any of your friends or known person is a twin flame, or they are in this awakening journey, or if you are married and if you are with a partner, and आप अगर सिंगल हैं, आप पार्टनर की तलाश करते हैं, या जो भी आपके पार्टनर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप ये ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से वैल्यूज़, आपके कौन से फाउंडेशंस आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर अ गुड रिलेशनशिप. इट कैन बी एनी रिलेशनशिप विद योर मदर. पार्टनर कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, है ना, कोई भी पार्टनर हो सकता है, हमारी लाइफ का सिबलिंग हो सकता है. तो जो भी पार्टनर के साथ आप जो भी रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस लेना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिकली फॉर ट्विन फ्लेम्स. दिस इज़ लव रीडिंग, इफ आई कैन अंडरस्टैंड. दिस इज़ लव कनेक्शन or a twin flame collection. Howsoever you believe in this journey, I don't want to discriminate it, and I don't want to put any disclaimer to it, twin flame journey का. बट आप जो भी बिलीव करते हैं, आप जो भी जर्नी में हैं, तो आप ये रीडिंग्स की हेल्प ले सकते हैं अपने करंट ऑब्स्टिकल्स को और सिचुएशंस को हील करने में. तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं कि आप कैसे कैसे मेडिटेशन कर सकते हो और कौन कौन सा मेडिटेशन कर सकते हो. एक बार रिवाइज करने के लिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, शैडो वर्क मेडिटेशंस, है ना. न्यू बिगनिंग्स के लिए आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अपने मेडिटेशंस कर सकते हो, चक्रा मेडिटेशंस कर सकते हैं. सो येस, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग, एंड please come back again on my channel, and bye bye, all the best.